Thank you, madam. Good morning to one and all. It's my namaste and my pranam to all the esteemed parents. Good morning, My sir. blessings to the children. Good morning, It's sir. my privilege. Good At morning, the sir. outside, I would request all the parents to Good morning, sir. switch off the camera and also mute the microphone. And as and when I complete my interaction with Good you, morning, sir. you can suggest me, you can advise me, you can guide me. But whatever will come from your side, definitely it will be in the favor of your child. And as madam told that we are working tirelessly. Yes, since last 33 years, I have been in the education sector. Earlier, though I was in the college level as a lecturer against FIP fellowship UCC, still I stepped down to schooling only from English education of my son. So after that, when my son get privileged and well settled in the society, I thought that yes, now time has come to serve the children who are downtrodden so far language is concerned as well as the knowledge is concerned. I cannot claim that I am a complete teacher. Even I salute my teachers, the great teachers, to whom I only share 1%. So I'm blessed with that. If I refer to the DAV, it's a global organization. It has fixed a benchmark. We are global because Dr. Khushwant Singh, the noted columnist who has written consistently writing the Ostambakar hai, Times of India and Times of India, he said after a rigorous survey, he has claimed that Devi is the biggest NGO in the world, not in the India or Asia. It is the biggest NGO in the world so far private education sector is concerned. So we claim the lion's share, and now we are at par CBSE. We become the policy maker, and if you look to the result of CBSE, the child of DAV stood fast. And why we become so popular, so global? Because we have produced 4 million alumni. Now 1 lakh plus teachers are there. We spread over 900 plus campuses in the India and 37 outside India abroad, unlike CBSE. And we impart the English education affiliated to CBSE. In some cases, it is affiliated to state board. हमारा बहुत सारे स्कूल है, हम बहुत पुराने हैं. वी बिगिन आवर हम्बल जर्नी इन 1886. हमारा पहला बच्चा लाहौर में पढ़ा, पहला स्कूल, पहला प्रिंसिपल वो संत थे, संत हंसराज, महात्मा हंसराज. और मैं जो स्कूल में आके अभी ज्वाइन किया हूँ, अप्रैल 25 तारीख को 2022 में मैं ज्वाइन किया हूँ छत्तीसगढ़ से आके, तो वो ये स्कूल जो जिस महात्मा बहुत नेक इंसान परमार साहब जो हमको कुछ जमीन और मकान दिए, जो संत इसको लिए, उनका नाम है महात्मा नारायण दास ग्रोवर. और उनका चयनित प्रार्थी में, और मैं उनके द्वारा भेजा गया था आईआईटी कैंपस खड़गपुर. लेकिन मैं उड़ीसा प्रिफर किया क्योंकि मेरा मिट्टी है, मेरा होम स्टेट है उड़ीसा, पुरी में, जगन्नाथ धाम में. तो मैं वहाँ उड़ीसा से स्टार्ट किया. 1.5 साल वहाँ रहने के बाद मेरा तबादला हुआ सिक्किम. I got transferred to Sikkim. I served the state Sikkim for 7 years. After that, I transferred to West Bengal, where I have sat 11 years. उसके बाद मैं छत्तीसगढ़ आ गया. छत्तीसगढ़, रायपुर और विश्रामपुर, सरगुजा. Then I never thought to come down to Jharkhand. लेकिन he blessed. Everything is destiny. Everything is preordained. आज मैं आपके समक्ष हूँ पालकों. आप सर्वदा मेरे लिए सम्मान्य, मेरे बच्चों का पालक है. मैं भी एक पिता हूँ, मैं भी आपका बच्चा का पालक हूँ. और मैं मेरा परिवार जो डीएवी फ्रेटर्निटी जुमरेतलिया कोडरमा, सबके तरफ से मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका नमन करता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ कि आप हमारे ऊपर विश्वास जताए, आपका बच्चे को डीएवी में दिए. डीएवी क्योंकि 1886
साल में जो शुरू किया, हमारा पहला बच्चा शहीद भगत सिंह। आज के दिन में अगर देखा जाए, आज का जो भारत के प्रथम नागरिक महामहिम हिज एक्सलेंसी रामनाथ कोविंद हमारा छात्र है, इज ए प्रोडक्ट ऑफ डीएवी कानपुर कॉलेज। तो वी टेक प्राइड इन दैट। आपका महेंद्र सिंह धोनी बोलिए, आपका शाहरुख खान बोलिए, शाहरुख खान जिस कॉलेज से, हंसराज कॉलेज दिल्ली में, जिस कमरे में रहते थे हॉस्टल में, मेरा सौभाग्य मिला, मैं जब ट्रेनिंग ले रहा था 10 दिन का, मैं उन्हीं का कमरे में उन्हीं का बेड शेयर किया था। बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी मेरे लिए था। और वहाँ उस समय थे ज्ञान प्रकाश, पद्म भूषण ज्ञान प्रकाश चोपड़ा जी। मैं सदैव शुक्रगुजार हूँ मेरा डीएवी मैनेजमेंट को, प्रेसिडेंट साहब, पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी, मेरा जनरल सेक्रेटरी साहब डॉक्टर अजय सूरी, मेरा डायरेक्टर साहब डॉक्टर जेपी सूर, और यहाँ का डायरेक्टर मैडम, रीजनल डायरेक्टर मैडम डॉक्टर उर्मिला सिंह, सबको मैं नमन करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को ये सौभाग्य मिला यहाँ आने के लिए, स्कूल विद्यालय को मुखिया प्राचार्य के रूप में काम करने के लिए। और सबसे ज्यादा मेरे को खुशी लग रहा है, आप जैसे बेहतरीन पालक, बेहतरीन पेरेंट्स, और आपका जो बच्चा बेहतरीन बच्चा, स्पेशल चाइल्ड, इच चाइल्ड स्पेशल, मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं पहला दिन जब मॉर्निंग असेंबली में बात किया तो उनको पूछा कि बच्चे असेंबली में ये क्या किए ना? सर प्रेयर किए। किसको प्रेयर किए ना? ईश्वर को प्रेयर किए। अच्छा, आप ईश्वर को देखे हैं? बच्चा बोला नहीं। ये सुबह सुबह इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया बेटा? ये तो सफेद झूठ है। मैं तो आज पूरा नया हूं आपके सामने में। मैं बोला कि आप बिल्कुल ईश्वर को देखते हैं, हर पल महसूस करते हैं, लेकिन आप कैसे नहीं जाने? पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, अतिथि देवो भव। भारत में गुरुदेवो भव, चार चार ईश्वर आपका इर्द गिर्द में घूम रहे, आप बोले ईश्वर को नहीं देखें? तो डीएवी सिखाता है संस्कार, आचार व्यवहार सब वैदिक। ओम भूर्भुवः से हमारा दिन शुरू होता है। विश्वानि देवा आनो Vadra Krutukunagam. That means let all the good thoughts come from all sides and infuse in my mind. सब अच्छा बात हमारा दिमाग में आए, हमारा बच्चा विकसित हो। आप ये सब सोच के, डीएवी को देख के, डीएवी ऐसा एक संस्था है गांव गांव जहां कोई नहीं पहुंचता है। देखिए डीपीएस सब सिटी एरिया में मिलेगा, वर्ल्ड स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल सब सिटी एरिया में मिलेगा। चुमले जैसा छोटा सा गांव में कहाँ डीएवी छोड़ के कौन मिलेगा? डीएवी अपने से ये पहचान है। मैं शुक्रगुजार हूँ। आई ओ माई थैंक्स, आई ओ माई obligations that you have trusted DAV, you have put your child in DAV, and I assure you, जिस आशा भरोसा के साथ, विश्वास के साथ आप बच्चे को दिए, उस विश्वास और आशा के ऊपर मैं खरा उतरूंगा। मेरे पास बेहतरीन शिक्षक का टीम है, सब हम निरंतर प्रयास करेंगे आपका बच्चों का सर्वांगीण उन्नति के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, आपका बच्चा मेरा है, ये विद्यालय आपका है। ये भावना जब जुड़ा रहेगा, वी वर्क हैंड इन हैंड, और ये विद्यालय कल हो सकता है आसमान को छू लेगा, बुलंदियों को छू लेगा। इफ योर चाइल्ड इज गुड, नेवर स्टॉप, मोटिवेट योर चाइल्ड टू बी बेटर। इफ your child better, never stop, motivate your child to be best, and if your child is best, insist your child to be best of the best। देखिए ऊपर, देखिए ऊपर में आसमान दिखेगा, वो आसमान समाप्त नहीं है, आसमान के ऊपर आसमान। आप सातवां आसमान के बारे में जानते हैं। सो उड़ान भरिए, बच्चों को, हर बच्चा एक स्पेशल होता है। आप खूबियां देखिए ना बच्चे को, ये नहीं कि बच्चे को खाली डिग्री और सर्टिफिकेट के हिसाब से हम पढ़ाते हैं, ये भी सिखाता है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलना उतना एटिकेट्स नहीं होता है। एटिकेट्स शुरू होता है घर से। जब उठता है बच्चा, आपको प्रणाम करेगा, माँ को प्रणाम करेगा। क्यों? मदर इज द फर्स्ट टीचर एंड टीचर इज द सेकेंड मदर। ये कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं। हम क्लासरूम में, विद्यालय में शिक्षक के नाते, गुरु के नाते, ईश्वर के नाते, चलते फिरते ईश्वर के नाते
हम द्वितीय माँ होते हैं और माँ हमारा जो है प्रथम गुरु होता है। लेकिन पटवर्ड पिता पापा लोग के बारे में क्या है? पापा लोग केवल एक एटीएम मशीन होते हैं। आप कमाना शुरू करते हैं, बस कमाने कमाई के पीछे दौड़ते हैं। मैं सबको विनम्र निवेदन करूंगा, सब पापा लोगों को विनम्र निवेदन करूंगा, भले हम जितने भी कमाते हैं आखिर किसके लिए, क्यों कमाते हैं? एक बार सोचिए, गौर कीजिए मेरे बात को। अगर हम अपना समय, व्यस्त समय से 24 घंटा से अगर आधा घंटा ऑफिस में आ गए, हाथ मुंह धो के चाय पी ले, बस अब आधा घंटा मैं बच्चों को दूंगा। अगर सब पिता, सब पालक आधा घंटा अपने बच्चों को दे, मेरे ख्याल से जो गैप है ना अपने बच्चे के, दैट गैप शुड बी ब्रिज्ड, फिर बंद हो जाएगा। बच्चा का डिपेंडेबिलिटी बढ़ेगा, बच्चा भरोसा करेगा पापा के ऊपर, मम्मी के ऊपर, और आसमान छू लेगा। इन दिनों एक एक अभावनीय घटना घटा, हमारे नहीं सारा विश्व में, ड्यू टू पैंडेमिक कोविड-19। ये हमको सिखा दिया एक तरीका, ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग में उसका प्रभाव है, इसका कुप्रभाव भी है। बहुत सारे पालक क्या किए, एक मोबाइल दे दिए। बहुत पहले पहले तो समझ नहीं पा रहे, अब सब लोग मास्टर हो गए। लेकिन हमारा बच्चा हमसे भी तेज है, चाहे वो क्लास एलकेजी हो या अब तो, मैं जितना समझता हूँ, मैं तो क्लास 3-4 पेरेंट्स को अभी एड्रेस कर रहा हूँ। तो ये तो बच्चा थोड़ा बड़ा है, बहुत तेज है आपका बच्चा। आपसे पास खोल दिया, ऑनलाइन क्लास को एंट्री कर दिया। आप तो जो कढ़ाई में जो पोहा बनाने में मस्त रहे, नाश्ता बनाने के लिए, आप क्या ऑफिस जाने के लिए वॉशरूम चले गए, आप बच्चा तुरंत चला गया चैटिंग करने में, नहीं तो डोरेमोन, पोकेमोन, छोटा भीम, डिज्नी, ये सब देखने के लिए, नहीं तो वीडियो गेम खेलने लगा। आप जब जब आते हैं, क्या कर रहा है बेटा, होमवर्क क्या मिला, फिर से बैक हो गया। तो आपको पता नहीं चला बच्चा कितना बिगड़ चुका है। तो इसका कुप्रभाव है। आज तो ऑफलाइन टीचिंग हम दे रहे हैं, ऑफलाइन टीचिंग में आप स्वतंत्र है, आप बच्चे को अपनी निगरानी में रखिए, अपना नजर के सामने रखिए, आप खुद इन्वॉल्व होइए। बोले बेटा, बैठो बेटा, लैपटॉप चाहिए, टैबलेट चाहिए, मोबाइल चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, बैठो मेरे सामने में करो, आधा घंटा 1 घंटा मैं रहूंगा, तब जाके। और मैं बोल रहा हूँ ईच चाइल्ड इज स्पेशल क्यों? भारत में क्या एक सचिन तेंदुलकर है? भारत में क्या एक एम एफ हुसैन है? भारत में क्या एक एम एस सुब्बलक्ष्मी है या एक लता मंगेशकर है? बहुत सारे हैं टैलेंट। मेरा बच्चा अगर कभी कल हॉट सीट में अमिताभ बच्चन के सामने केबीसी खेलेगा, जूनियर केबीसी, तब बोलेगा हाँ मेरा प्रिंसिपल रेड्डी सर ने मेरे को मोटिवेट किया, इसलिए मैं यहाँ तक आ गया, मेरा माता पिता मोटिवेट किया, मैं यहाँ तक आ गया, तब मेरा छाती बहुत गर्व से फूल जाएगा। ये क्यों नहीं ढूंढते हैं? मेरा बच्चा अगर क्रिकेट खेलेगा बढ़िया से, तो क्या धोनी को क्रॉस नहीं करेगा? धोनी तो आप ही का राज्य का है, रांची का बच्चा है, देवी का बच्चा, देवी का बच्चा। बच्चे हैं साहब, अवार्ड क्रिकेट टू योर चाइल्ड। मैं आपका बच्चे को एक बेहतरीन इंसान बनाने के लिए आया हूँ। ये संस्कार मेरे क्लासरूम टीचिंग से रिफ्लेक्ट होगा। यू नो द इंडियन यूथ बिकम डिरेल्ड। आज नक्सलवादी माओइस्ट क्यों है? दे मिसयूटिलाइज द एजुकेशन। Now we at DAV we impart quality education with spirituality. That spiritualism is an acid that clears all the evil that is registering in the mind of the child. मन में, आपका निष्पाप शिशु के मन में जो पाप समा हुआ है, जम गया है, उस पाप को धोने के लिए हमारा जो ये वैदिक शिक्षा और धर्म शिक्षा, नैतिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए मेरा निवेदन है सारे पालकों को, माता पिता को, समय अपना व्यस्त समय से आधा घंटा समय दे और
और बच्चों का चरित्र स्वामी विवेकानंद ने बोला था ना, द एंड ऑफ एजुकेशन इज कैरेक्टर। सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका बच्चा एक बेहतरीन इंसान बन जाएगा, समाज में प्रतिष्ठित नागरिक बन जाएगा, वो आप उनके पापा के यहाँ, देखो ये मास्टर सचिन का पापा जा रहे हैं, आपको तो गर्व लगेगा, because you'll be recognized, you'll be identified by the name and fame of your son or daughter। आपका बेटा या बेटी का नाम पे जब पहचान होगा, कितना खुशी लगेगा, कितना गर्व लगेगा। दैट प्राइड आई टेक एज प्रिंसिपल। यस, डीएवी पीवीएसएस डीएवी का बच्चा टॉप किया है स्टेट में। और ये मैं जो छत्तीसगढ़ में था, यू नो माय माय चाइल्ड गॉट द टॉप रैंक। पहले मैं बोल नहीं सकता। माय चाइल्ड गॉट 300 rank in IIT and 167 rank in NEET, and my child got NTSC, and my child got the highest in the state 98.6। केवल एक सब्जेक्ट में 3 मार्क कम हो गया, अदरवाइज बाकी सब में 100 रखा। कैन यू इमेजिन? ये क्या टैलेंट नहीं है हमारा? ये बच्चे को अंदर सब कुछ, मैं तो नहीं लिखा उसका पेपर, आपका बच्चा ना लिखा। सो आपका बच्चा में हुनर भरा हुआ है। मैं काम क्या किया, मैं थोड़ा पॉलिशिंग कर दिया, आज मुझके साफ कर चक करवा दिया, वही तो मेरा काम है। द जॉब ऑफ ए मेंटर, जॉब ऑफ ए प्रिंसिपल इज सिंपली लाइक दैट। मैं with all these I can say that NEP NEP 2020 जो आ गया, असेसमेंट ऑफ लर्निंग अभी चेंज हो गया, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। सो इसीलिए हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग देते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग देते हैं। मैं जब देखता हूँ, जब छुट्टी हो जाता है ना, और मेरा टीचर थोड़ा सा आगे जाके बहुत चाक प्रेशर दे देते हैं बच्चों को, कूट कूट के भर भर के सब दे देते हैं होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क। तब माँ तो प्रेशर में आ जाता है, पापा चलते हैं ढूंढते, मेरे को थर्मोकोल चाहिए, मेरे को डायोड चाहिए, मेरे को एक्रिलिक पेंट चाहिए, मेरे को पेंसिल चाहिए, रबर चाहिए। वो पापा लोग परेशान होते हैं मार्केटिंग में, मम्मी लोग परेशान होते हैं बनाने में, और बच्चा आराम से वीडियो गेम खेलता है, और जब खुलता है और लेके दे देता है टीचर को। दिस इज नॉट गुड, ये होना नहीं चाहिए। बच्चे के लिए आप सारा सामान उपलब्ध करवाइए। यू गिव ऑल द रिसोर्सेज टू द चाइल्ड एंड आस्क योर चाइल्ड टू डू इट अपॉन, और खुद करे, तब जाके लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई होगा। आप घर में कीजिए, हम स्कूल में विद्यालय में करते हैं। तो ये एक हैंड इन हैंड विन विन रिलेशनशिप होगा। We always try, we always help your child grow better, and your cooperation is our strength। आप कोऑपरेट करोगे, हम शक्तिशाली बनेंगे, मजबूत बनेंगे। हम सदैव प्रयासरत है आपके बच्चों को बौद्धिक शिक्षा देने के लिए, उत्तरोत्तर उन्नति के लिए हम प्रयासरत हैं। तो जब छुट्टी होता है ना, बच्चों को आप घुमाने लेके जाइए, क्लास रेगुलर चलने के बंक मत कीजिए। इंसिस्ट योर चाइल्ड टू अटेंड द क्लास रेगुलरली, एब्सेंटिज्म अवॉइड कीजिए। घर में शादी ब्याह जब होता है, उसको रिक्वेस्ट करके छुट्टी में करवाइए। अगर मेडिकल इमरजेंसी रहा तो चलेगा, एक्सेप्ट इमरजेंसी आप सदैव प्रयास कीजिए स्कूल भेजने के लिए। स्कूल का पढ़ाई सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सेंटर मत कीजिएगा। और जब छुट्टी होता है ना, तब आप आउटिंग में लीजिए, घर में बिठा के मत रखिए। बच्चा गैजेट देखता है, वीडियो गेम खेलता है, उसको छीन लीजिए, उसको बोलिए जाओ बाहर क्रिकेट खेल के आओ, फुटबॉल खेल के आओ, कबड्डी खेल के आओ, खो खो खेल के आओ, फ्रेंड्स के साथ मिलो, पड़ोसी के साथ मिलो, अंकल आंटी सबके साथ मिलो, अदब कायदा सीखो। सो यू डेवलप ए सेंस ऑफ ह्यूमिलेशन, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड टू ग्रेटिट्यूड इज मस्ट। ये होना चाहिए बच्चों का, वो घर से सीखना चाहिए, क्योंकि मदर इज द फर्स्ट टीचर एंड टीचर इज द सेकंड मदर। हम लोग इस मानसा से, इस साझेदार से काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आने वाले दिन में मैं बारी बारी आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। बहुत सारे बात जो परिवर्तन होता है सीबीएसई में और डीएवी में,
तो सबके साथ में मैं आपके साथ प्रस्तुत करूंगा और बच्चे को निश्चित रूप में गाइड करूंगा, मेंटर करूंगा, जो बच्चे भविष्य में अच्छा करेंगे। तो ये छुट्टी के समय में आप एक काम कीजिए ना, एक अच्छा किताब खरीद के दे दीजिए, पढ़ेगा। बुक रीडिंग हैबिट इज द मस्ट। और मैं निवेदन, बच्चा क्योंकि क्लास 3-4 में आ गया है, मैं निवेदन करूंगा आपको, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में यू क्रिएट एन इंग्लिश एनवायरनमेंट एट होम। मैं तो कैंपस में रिस्टोर कर दिया। मेरा कैंपस में कोई भी बच्चा, नो नो चाइल्ड कुड डेयर टू टॉक टू एनी टीचर, इवन द प्रिंसिपल, इन अदर लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। और अगर कोई दूसरा लैंग्वेज में बात करता तो मैं फाइन इम्पोज करता हूँ। फाइन क्या इम्पोज, मैंने, हम तो पीटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, बट I will impose one simple punishment as a rectification measure or method. So you improve that one। और आप देखिए, सबका एक सपना होता है। मैं अगर पूछूंगा आप अपने बच्चों को क्या देखना चाहते हैं, 99% आएगा डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, बहुत बड़ा जस्टिस, लॉयर, ये सब आएगा। आप में से तो कोई अपने बच्चों को टीचर नहीं बनाना चाहता है ना। तो आपका कलेक्टर, आपका एसपी साहब, आपका जो बड़े बड़े उद्योगपति कैसे बने? एक शिक्षक ने ना पढ़ाया, एक टीचर ने ना पढ़ाया। तो एक जगह आप देखेंगे बेस्ट फैकल्टी चाहिए, एक जगह आप अपना बच्चे को नहीं बनाना चाहते, कहाँ आएगा क्वालिटी टीचिंग, क्वालिटी टीचर कहाँ आएगा? सिलेबस जो एनईपी 2020 आ गया। देखो, राइट टू एजुकेशन क्या बोला, तो 8वीं तक कोई फेल नहीं। लेकिन हम डीएवी में देखते, डीएवी इंटरनल बोर्ड क्या 8वीं में, 9, 10, 11, 12 बोर्ड है। अब एनईपी 2020 बोल रहा कोई भी बोर्ड नहीं होगा, आखिर में 12 में बोर्ड होगा। लेकिन स्कूल को स्वतंत्र कर दिया, हर साल में वो बोर्ड एग्जाम जैसा एग्जाम कंडक्ट करेगा, कॉमन बोर्ड होगा, कॉमन क्वेश्चन होगा, डीबी में होता है, रीजन बेस्ड। ठीक है, तो आप इसी तरह प्रयास रहिए, खुद को अपडेट कीजिए। सीबीएसई वेबसाइट www.cbse.nic.in, हमारा डीएवी का जानते हैं, हमारा जुबली तलय का वेबसाइट देखिए। यू लॉग ऑन, यू एनरिच एंड यू अपडेट योरसेल्फ, देन हेल्प अपडेटिंग द चाइल्ड। तब ना जाके संभव होगा, तब ना जाके प्रोग्रेस देखेंगे बच्चों में। तो आप, हमारा जो ग्रेडिंग सिस्टम, हमारा जो एग्जाम सिस्टम के बारे में आपको, आप तो वाकिफ है। मैं और एक बार भविष्य में पूरा बारी बारी आपके सामने में अपियर करूंगा। और हमारे पास सिलेबस और ब्रेकअप सिलेबस और एग्जाम डेट शीट मंथ अब तक नहीं आया है, बहुत जल्दी आएगा। मैं खेद प्रकाश करूंगा, इस बार एक्सेसिव एडमिशन के चलते हुए कुछ पालकों को किताब नहीं मिला। मैं प्रयास में, लेकिन गुड सजेस्ट किया मॉर्निंग हूँ सर। कि वेबसाइट से किताब को कुछ चैप्टर वाइज डाउनलोड करें और पढ़ाई जारी रखें। जब मेरे पास किताब आ जाएगा तब मैं तुरंत आपको फोन करूंगा, सूचना दूंगा और आपसे आपको किताब मुहैया करवाऊंगा, उपलब्ध करवाऊंगा। और बच्चे का जो बुक अदर क्वालिटीज जो डेवलपमेंट करने के लिए मैं आपको एडवाइस किया था, अभी सजेस्ट किया था, तो उसमें से एक नंबर है बुक रीडिंग। छुट्टी में आप अपने बच्चे को किताब पढ़ने के लिए भरपूर मौका दीजिए। हमारे समय में चंदा मामा होता था, अब तो चंपक हो गया है ना। तो इस तरह छोटा छोटा मैगजीन, छोटा छोटा किताब, अच्छे अच्छी किताब बच्चों को पढ़ने के दीजिए। एक अंग्रेजी पत्रिका जो है टाइम्स ऑफ इंडिया हो, स्टेट्समैन हो, एशियन एज हो, बहुत सारे स्टेट्समैन हो, बहुत सारा पत्रिका है, एक न्यूज मैगजीन दीजिए। और इंग्लिश चैनल को दीजिए, डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लैनेट, ये सब जो इंटरेस्टिंग चैनल्स दिखाइए बच्चों को। वो बच्चे के मन में बहुत आग्रह बढ़ेगा। साइंस फिक्शन हो, ट्रू स्टोरी हो, इंस्पायरिंग बायोग्राफी हो, वो सब दीजिए, बहुत बच्चा डेवलप करेगा। तो आप, यू शुड एक्ट एज ए मेंटर एट होम एंड आई विल एक्ट एज ए मेंटर एट स्कूल। तब जाके हमारा बच्चा बहुत अच्छा करेगा। सो आई होप दैट you have got maximum feedback from my, it is introductory interaction, so I'm not going to
Sir, please, Mr. Rajesh, please switch up your video. It is not looking good. Mr. Rajesh, please switch up your video. Mr. Rajesh Yadav, please switch up your video. Uh, आप एक दो इम्पोर्टेंट बात मैं रखता हूँ। इस सब के बाद मैं जैसे कि बोला, मैं बारी बारी आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा और आपके साथ बात करूंगा। बच्चों के भलाई के लिए जो कुछ करना है, जितना संभव है मैं करूंगा। अगर मेरे को कुछ आप सजेस्ट करेंगे, मेरे को कुछ गाइड करेंगे, आपका बच्चे के साथ कुछ मैंने असुविधा हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसको अगर बताना चाहते हैं, मैं आपको फोन नंबर दिया हूँ, मोबाइल नंबर दिया हूँ, मैं मेरा मेल आईडी दिया हूँ। अगर मैं फोन नहीं उठाऊंगा, आप निश्चिंत रहे, मैं कॉल बैक करूंगा। हो सकता है मैं बिजी हूँ, कहीं व्यस्त हूँ, मैं कॉल बैक करूंगा। और दूसरी बात है, आपको मैं मोबाइल मेल आईडी दिया हूँ, मेल आईडी में एक दरखास्त दे दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है। इन दिनों बहुत सारे पेरेंट्स का फी देने में प्रॉब्लम हुआ, मैं तो उसमें गौर किया और उनका समस्या समाधान हो गया। माई डोर इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। Please remember that your principal is working 24/7 only for। देखिए, बच्चा नहीं होता तो उनके पालक आप जैसे पालक नहीं होते, आप जैसे पालक नहीं होते तो मेरा शिक्षकगण नहीं होते, मेरा शिक्षकगण नहीं होते तो ये स्कूल नहीं होता, ये स्कूल नहीं होता तो मेरा ट्रांसफर नहीं होता, मैं यहाँ नहीं आता। तो मेरे लिए मेरा ईश्वर, मेरा भगवान तो मेरा बच्चा है और उनका पालक है, तो उनका सेवा करना मेरा उत्तरदायित्व है, नैतिक दायित्व। सो आई बिलीव इन दैट वे। सो आप भी, मैं अगर अपने बच्चे, आपका बच्चे को अपना समझता हूँ, आप ये विद्यालय को अपना समझिए। द नेम एंड फेम ऑफ द स्कूल must be upheld by yourself. You should try your best to uphold the name and fame of the school. And I assure you, I will take all the pain for the all-round development of your child. ये मैं वादा करता हूँ आपसे। स्कूल फी नियमित रूप से दीजिए, समय में दीजिए, नहीं तो फाइन इम्पोज होगा। ये स्कूल मैनेजमेंट का निर्णय है। मैं बहुत जल्दी इस निर्णय पर आपके पास समक्ष रखूंगा, लेकिन ये अभी जब तक निर्णय नहीं होता है तब तक जो पुराना पद्धति के हिसाब से दीजिए। अब मैं इस सेशन में बहुत सारा चेंजेस करूंगा, बहुत सारा सुविधा भी दूंगा। स्मार्ट क्लास करने के लिए मैं सोच रहा हूँ, इसके लिए आपका 100% कोऑपरेशन चाहिए। तो इसमें मैं फिर एक बार मीटिंग लूंगा, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा, हर महीना का सेकेंड सैटरडे पेरेंट टीचर मीटिंग रहेगा। विद्यालय बंद रहेगा, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगा। हर महीने का सेकेंड सैटरडे पेरेंट्स टीचर मीटिंग रहेगा। आपको स्कूल में आना है और टीचर से बात करना है, क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर, सब। उसके बाद अगर समस्या का समाधान नहीं हो तो मैं फिर एक बार बोलता हूँ, ऑल द प्रॉब्लम्स हैव इक्वल सॉल्यूशंस। When you are coming to principal for lodging a complaint or problem, you come with the solution. Otherwise, I will consider you yourself as the biggest problem. मैं तो, मेरा कॉन्सेप्ट पूरा pragmatic है। I have a very pragmatic approach in this regard. अगर समस्या का समाधान में समाधान के साथ नहीं जाता हूँ तो मैं खुद एक बड़ा समस्या हूँ, मैं ये सोचता हूँ। तो इसीलिए आप अगर समस्या लेकर आते हैं, उसका समाधान क्या है वो भी लेके आइए, बैठ के बात करेंगे। मेरे को एक्सेप्टेबल है, विद्यालय को एक्सेप्टेबल है, आपका एक्सेप्टेबल है, मैं बिल्कुल आपके साथ रहूंगा। आपका बच्चे के लिए, भलाई के लिए जो कुछ करना, जितना भी करना, मैं पूरा एक्सपांड, रबर जैसा, इलास्टिक जैसा एक्सपांड होके मैं आपका बच्चे को सहायता करूंगा, आपको भी सहायता करूंगा। विद ऑल दिस आई होप दैट आई हैव टॉक्ड अ लॉट। आपका ऑफिस का समय हो जा रहा है, आपका खाना बनाने के, नाश्ता बनाने के समय है। इस सब के बावजूद आप मेरे लिए 10-20 मिनट दिए आज सुबह, इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको नमन करता हूँ इसलिए, और आपके बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ। वो तरक्की करे, पढ़ाई करे, अच्छा इंसान बने, अच्छा नाम करे, बहुत नाम करे, ढेर सारा नाम करे, आपका परिवार का नाम करे, देश का भी नाम करे। इसके साथ, विथ ऑल दिस, आई अगेन प्लेस my sincere record of thanks to all my esteemed parents of class 3 and 4 for giving me
some time of their busy schedule, and I pray to my God, my Lord, that, oh Lord, grant us faith that from day to day we may walk with you in a blessed way. Thank you very much. Thank you. God bless. Thank you. Thank you, sir.